Hello everyone. So today we will see some important questions for our science olympiad on plants. So here what we have, name of some of the plants are given below. How many of these are dispersed by wind? So here we have to find by wind. Okay. So wind dispersed. So see, first is P. We know that it is dispersed by explosion. Then we have hiptage. Now hiptage is dispersed by wind. Lotus, water, right? So lotus through water, mango through animals, then apple animal, then balsam explosion, right? Then we have geranium again explosion. Then we have madar. Madar we know that it is dispersed by wind. Coconut, water, and last we have dandelion. So dandelion is again dispersed by wind. So how many of these are dispersed by wind? So we have hepatage, madar, and dandelion. So 3, right? So this is how we have to solve the question. Now second question, refer the given figure and select the correct options that correctly identify PQR. Okay, so it is a cross section of a seed, now in this you can find out what are the different parts. So we know that, see, radical stand for root, and plumule stand for stem. So obviously stem part is upper part. That means R must be stem. Okay. And here P must be root, which is nothing but radical. And stem is formed from plumule. So that means we have P as radical. So here we have option C and D. We have radical over here. And R we have plumule, right? So that means Q is, as you can see already here, Q is also cotyledon. So option C is our correct option. Now question number 3. So what we have here, Tanu made 3 groups consisting of 3 plants, each wherein she classified plants on the basis of their vegetative propagation. She placed one wrong plant in each group. Identify the wrong plant and select the correct option. So group 1 we have ginger, onion and dahila. So ginger stem modification, onion stem modification. But see, dahila is a root. So here we have root. Next, turnip, potato and radish. So turnip is a root, potato is a stem and radish is a root. So here potato is a what? Stem. And third we have bryophyllum, carrot and begonia. So bryophyllum and begonia propagate through leaf and carrot propagate through stem. So here this is stem. So that means these 3 are wrongly placed. Now here see options. Ginger of group 1. Ginger of group 1, no, it is correct. So we will not look for it. Option B. Dahila of group 1 should be interchanged with potato of group 2. Okay, dahila of root 1, that is root, should be replaced with potato. So पोटैटो इज ए स्टेम. तो पोटैटो को ऊपर भेजा, दहीला को नीचे आएगा. तो ठीक है, ये ऑप्शन चलेगा, है ना, ये ऑप्शन चलेगा. सी ऑप्शन देखो, कैरेट ऑफ ग्रुप 3 शुड बी रिप्लेस विथ बेगोनविलिया. सो कैरेट बेगोनविलिया जो है वो क्या है, ये स्टेम से होता है. सो स्टेम का है ही नहीं, है ना. सो वो ऑप्शन भी नहीं आएगा. नेक्स्ट देखो, ऑनियन ऑफ ग्रुप 1 शुड बी इंटरचेंज विथ कैरेट ऑफ ग्रुप 3. नो, ऑनियन इज करेक्ट है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ओके स्टूडेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेफर द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट. सीड डिस्पर्सल दिया है बाय विंड, बाय वाटर, बाय एक्सप्लोजन, बाय एनिमल्स. सो कॉटन, सो यहाँ पे पी जो है वो विंड से होने वाला है. सो पी विंड से होने वाला है, मतलब एप्पल तो नहीं आएगा. डैंडेलियन आएगा या मदार आएगा. कॉकल ब्लेयर जो होता है वो एनिमल से जाता है ना. सो ऑप्शन ए आ सकता है या ऑप्शन सी आ सकता है. देखो क्यू क्या है, क्यू है बाय वाटर. सो वाटर में बीन है और कोकोनट है. सो ऑब्वियसली वाटर में से क्या जाता है, कोकोनट. सो डैंडेलियन, सो पहले तो ये दोनों करेक्ट है ना, मदार और डैंडेलियन करेक्ट है. अब देखो यहाँ पे क्या है, वाटर से तो कोकोनट,
बाय एक्सप्लोजन पॉपी, और ये है वाटरमेलन बाय एनिमल्स। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो हम ऑप्शन देख के भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय रूट से बोला है। कहाँ से बोला है? रूट से बोला है। सो रूट वाला आंसर निकालना है। तो देखो क्या है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस थ्रू रूट? सो ऑनियन एंड गार्लिक, onion and garlic bulb stem, no. Then what we have? We have radish and beetroot, yes, radish and beetroot जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूट से। नेक्स्ट वी हैव पोटैटो एंड कैरेट, तो कैरेट तो ठीक है, पोटैटो लेकिन स्टेम से है ना, सो वो नहीं आएगा। उसके बाद रेडिश एंड बोगनविलिया, सो देखो बोगनविलिया जो है वो स्टेम से आता है, रेडिश ओके ठीक है चलेगा, लेकिन हमें क्या है, हमें दोनों भी क्या चाहिए? रूट से चाहिए। मतलब क्या आएगा? रेडिश एंड बीटरूट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द फील्ड प्लांट्स आर गिवन इन द बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ देम रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर से बोला है। किससे बोला है? स्पोर्स से। किससे बोला है? स्पोर्स से। सो स्पोर से मतलब क्या है? उनके लिप पे क्या होने चाहिए? डॉट डॉट स्पोर्स होने चाहिए, ठीक है ओके। सो इसमें देखो पहला क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम कहाँ से होता है? लीफ से, है ना। पोटैटो स्टेम से। फर्न, ओके फर्न है राइट। फर्न जो होता है वो क्या होता है? वो स्पोर से होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद उसमें दहीला है राइट। सो दहीला जो होता है वो किससे होता है? स्टेम से होता है। उसके बाद कोरिएंडर है, कोरिएंडर के सीड्स होते हैं। उसके बाद मदार है, ओके सो मदार के भी क्या होते हैं? सीड होते हैं। मॉस, यस, मॉस जो होता है वो क्या है? स्पोर से होता है। देन बेगोनिया, बेगोनिया, सो बेगोनिया जो होता है वो भी क्या होता है? वो लीव से होता है, ब्रायोफाइलम की तरह, है ना। एंड ब्रोकोली जो होता है तो अगेन सीड से। सो दैट मीन्स ओनली 2 आर रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। रेफर द गिवन लिस्ट ऑफ योर एक्वाटिक प्लांट। सो वाटर लिली, डकवीड, हाइड्रिला, लोटस, पिस्टिया, टेप ग्रास, हाउ मेनी अमंग देम आर कंप्लीटली सबमर्ज? सो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कंप्लीटली सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट्स। सो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कंप्लीटली सबमर्ज मतलब इनसाइड वाटर चाहिए, ओके। सो इसमें देखो, इसमें जो है वो डकविड और जो पिस्टिचिया है वो क्या करते हैं? वाटर पे फ्लोट करते हैं। ये जो दो है क्या है? फ्लोटिंग। ये वाला फ्लोटिंग, ये वाला भी क्या है? फ्लोटिंग, ठीक है। उसके बाद वाटर लिली एंड लोटस, वाटर लिली एंड लोटस जो होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, लेकिन वो अंदर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ठीक है। वो ऐसा मूव नहीं कर सकते। ये पिस्टिया और डकविड मूव भी कर सकते हैं वाटर में। सो ये क्या होते हैं? ये भी फ्लोट करते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, फिक्स। सो जो ये टेप ग्रास है और हाइड्रिला है वो वाटर में क्या होते हैं? सबमर्ज होते हैं। सो टेप ग्रास एंड हाइड्रिला आर सबमर्ज इन वाटर। सो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू।